السلام علیکم لسنرز، آئیے ناول بھگوڑا کی نویں قسط سنتے ہیں۔ اس کے مصنف ہیں ریاض عاقب کوہلر۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کچھ نہیں، تم ڈرائیونگ پر توجہ دو۔ میں نے جان بوجھ کر اسے جھڑکا اور اس نے ہونٹ بھینچ کر گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ یہ شاید اپنے اندرونی ابال پر قابو پانے کی اضطراری کوشش تھی۔ گڈ، میں مسکرا کر بولا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھی خاصی ڈرائیونگ کر لیتی ہیں۔ لیکن اس نے جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ گاڑی کی اندرونی لائٹ بجھا دو، سامنے سے آتے دو مشکوک بندوں کو دیکھ کر میں نے کہا، اور اس نے اس مرتبہ بھی میری بات کا جواب دیے بغیر لائٹ بجھا دی۔ اب باہر سے میرا دیکھا جانا مشکل تھا۔ اس گلی میں مجھے ایک دو اور گاڑیاں بھی حرکت کرتی دکھائی دیں اور یہ میرے حق میں بہتر تھا۔ جلد ہی ہم اس گلی سے نکل کر روڈ پر آ گئے۔ مین روڈ پر ہم تھوڑا آگے ہی بڑھے ہوں گے کہ پولیس کی 2-3 گاڑیاں سائرن بجاتی ہمارے پاس سے گزر گئیں۔ مجھے یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ شور مچانے کا مطلب تیری موت ہی ہے۔ اس کے بعد میرے ساتھ جو کچھ ہوگا اس سے میں نمٹ لوں گا۔ پولیس کی گاڑیوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر جو تاثرات ابھرے تھے، ان کی وجہ سے میں نے اسے متنبہ کرنا ضروری سمجھا۔ اس نے میری بات سن کر حسب سابق بولنے سے گریز کیا تھا۔ روڈ پر گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ ہماری کار درمیانی رفتار سے چلتی ہوئی وہاں سے دور ہٹتی گئی۔ میں ایک بہت بڑے حملے سے بچا تھا۔ دشمن نے بڑی چالاکی اور عیاری سے مجھے گھیرا تھا۔ مجھے اپنی بے وقوفی پر بہت غصہ آیا۔ گزشتہ شب پولیس والوں کے آگے بڑھ جانے کے بعد مجھے عبد المنان کے گھر سے نکل کر وہ محلہ چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ خفیہ ایجنسیاں اپنی پوری قوت کے ساتھ میرے خلاف سرگرم عمل تھیں۔ کسی بھی قسم کا رسک میرے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ میری سب سے بڑی مشکلات میں ایک تو علاقے سے ناواقفیت تھی اور دوسرے دشمن میرے حلیے سے اچھی طرح واقف تھے۔ ایسی صورت میں مجھے زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی اور دشمن کی نفسیات کو مد نظر رکھ کر چلنے میں میری عافیت تھی۔ میں اندھی کھائی کے کنارے چل رہا تھا۔ ایک غلط قدم مجھے اوندھے منہ کھائی کے اندر گرانے کے لیے کافی تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو اس غلطی پر سرزنش کی اور دوبارہ ایسی غلطی نہ کرنے کا عہد کیا۔ لیکن یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ دشمن میری کسی غلطی سے ہی مجھ پر قابو پاتے۔ ہو سکتا تھا کہ میں اپنی طرف سے ہر قسم کی احتیاط برتتا، لیکن دشمن اپنی چالاکی اور عیاری کی بدولت مجھ پر قابو پا لیتا۔ بہرحال یہ سب بات کی باتیں تھیں۔ اس وقت مجھے موجودہ صورتحال سے نمٹنے کی ضرورت تھی۔ ابھی تک مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہوا تھا کہ کار کا رخ کدھر تھا۔ اس لڑکی سے پوچھنا بھی نامناسب تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کو علاقے سے میری ناواقفیت کے بارے میں معلوم ہو۔ اگر آپ میرے پتا جی سے تاوان وصول کرنے کے لیے مجھے اغوا کر رہے ہیں تو آپ کو مایوسی ہوگی۔ ان کی اکلوتی اولاد ہونے کے باوجود انہیں مجھ سے زیادہ دولت عزیز ہے۔ وہ کافی دیر کی خاموشی کے بعد اچانک بولی، میں ایسے بندوں سے پیسے نکلوانا جانتا ہوں۔ میں نے اس کی غلط فہمی برقرار رکھی۔ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو 1.5-2 لاکھ تک کی رقم تو میں اپنے اکاؤنٹ سے ادا کر سکتی ہوں، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہا ہا ہا، میں نے مصنوعی قہقہا لگایا۔ 1.5-2 لاکھ کے لیے تمہیں کون چھوڑ سکتا ہے؟ اور وہ میری سومعنی بات سن کر جھینپ سی گئی۔ اسے اگر آپ اپنی جیب میں رکھ لیں، اس نے پستول کی طرف اشارہ کر کے کہا، ضرورت پڑنے پر بھی تو آپ نکال سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو غلطی سے گولی چل جائے اور جیب میں ایک اور بھی موجود ہے۔ میں نے خوفناک شکل والا بریٹا اسے نکال کر دکھایا۔ لیکن تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو میں جیب میں رکھ لیتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا اسے جیب سے باہر نکالنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ پستول کوٹ کی جیب میں رکھ کر سیٹ پر میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کو مسلسل دیکھنے سے الٹے سیدھے خیالات میرے ذہن میں پرورش پانے لگے تھے۔ وہ خطرناک حد تک حسین تھی۔ مجھے سیدھا ہوئے 1-2 منٹ ہی گزرا تھا کہ اچانک اس نے زور سے بریک لگائی اور میں جھٹکے سے آگے بڑھا۔ اپنی پوری کوشش کے باوجود میں اپنا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرانے سے نہ بچا سکا۔ میں ابھی تک پوری طرح سنبھلا بھی نہیں تھا کہ میری گردن پر ایک سخت ضرب لگی۔ میری آنکھوں کے سامنے چنگاریاں سی پھوٹ پڑیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوا ہے۔ میرے دماغ سے سوچ ابھری۔ گردن پر لگائی گئی چوٹ سے شاید میں سنبھل نہ پاتا،
लेकिन गर्दन में लिपटे हुए मफलर ने मुझे बेहोश होने से बचा लिया था। इसके नर्म और नाजुक दिखाई देने वाले हाथों में बला की सख्ती थी, लेकिन इससे पहले कि वो दूसरी ज़रब लगाती, मैं झटके से सीधा हुआ और उसकी लगाई हुई दूसरी ज़रब से बाल बाल बच गया। उसकी हथेली की चौप मेरे रान पर लगी और अगले ही लम्हे उसका दाहिना हाथ मेरे बाएं हाथ की गिरफ्त में था, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी कोशिश जारी रखी और अपने बाएं हाथ से मेरे चेहरे पर हमलावर हुई। अब इसके हमले कामयाब होने का मतलब मेरी नाअहली होता। इसके दूसरे हाथ को भी अपनी गिरफ्त में लेकर मैंने जोर से दबाया तो इसके मुंह से कराह सी निकली। इसके साथ ही वो चिल्लाई, छोड़ो मुझे जंगली सुअर। उसके मुंह से मुग़ल्लज़ात का लावा उबल पड़ा। इतने खूबसूरत होंठों से इतने करीहा अल्फाज सुनने की तवक्को मुझे नहीं थी। मैंने इसके दोनों हाथ छोड़कर बाएं हाथ का एक भरपूर थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया और वह अपनी सीट पर ही गश खाकर गिर पड़ी। इसकी कैंची की तरह चलती जबान को यकदम ब्रेक लग गई थी। अगर मैं इतना ही मोम का पुतला होता तो ऐसे कामों में हाथ न डालता, मैं कुसीले लहजे में बोला, और अब आराम से गाड़ी चलाना, इसके बाद गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होगी। तेरी गर्दन तोड़ने के लिए मुझे पिस्तौल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा थप्पड़ खाकर उसका सुर्ख सफ़ेद चेहरा लाजमंद सुर्ख हो गया होगा, लेकिन स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मैं इसके चेहरे को इतनी बारीकी से नहीं देख सकता था। वो लरसती हुई उठी और स्टीयरिंग पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे अपने रवैये पर नदामत महसूस हुई। मैं इस वक्त एक गुंडे और गलत शख्स के रूप में था और ऐसे बंदे से जान छुड़ाने में वो हक बजानिब थी। मुझे शुरू ही से उसे अपनी हकीकत बतला देनी चाहिए थी। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैं शर्मिंदा लहजे में बोला। मैं कोई गलत बंदा नहीं हूँ और ना ही मैं तुझे अगवा करके ले जा रहा हूँ। मैं तो खुद दुश्मनों से बचता फिर रहा हूँ और तेरी कार में भी मैं अपने मुखालफिन से छुपने के लिए घुसा था। मेरी गलती कि मैंने तेरे साथ ड्रामेबाजी शुरू कर दी। प्लीज़ अब अपना मूड ठीक कर लो और मुझे मज़ीद शर्मिंदा ना करो। मेरी बात ख़त्म होते ही उसने अपना सर उठाकर मेरी आंखों में झांका और बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। वो तो शुक्र था कि गाड़ी की अंदरूनी लाइट बंद थी, वरना मैं कभी भी इन आंसुओं से धुली आंखों की ताब न ला सकता। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। किसी भी महफूज मकाम पर पहुँचते ही मैं तुझे छोड़ दूंगा। खाओ भगवान की कसम। भगवान की कसम तो नहीं, अलबत्ता अपने रब की कसम खा सकता हूँ। तुम मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हूँ। मेरा लहजा फ़ख्रिया था और मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता। कहाँ जाओगे? इस मर्तबा उसने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए पूछा। दिल्ली से करीब तरीन शहर कौन सा है? आप किस सिमत का पूछ रहे हैं? दिल्ली से तो आगरा भी करीब है, जयपुर भी है, इसी तरह मेरठ भी तकरीबन इतने ही फासले पर है। आप मुझे किस शहर तक पहुंचा सकती हैं? मैं दानिस्ता उसके आगे बम्बई की सिमत का तस्करा नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी मेरे सफ़र की सिमत मालूम हो जाए। किसी शहर तक भी नहीं। पिताजी मेरी गुमशुदगी से सख्त परेशान होंगे, क्योंकि कई दुश्मन मेरी ताक में हैं। गुमशुदगी? मैं हैरानी से पूछने लगा। अभी घर से निकले तुझे घंटा भी नहीं गुजरा और तुम्हारे पिताजी तुम्हारी गुमशुदगी से वाकिफ हो गए? मैंने अपनी कोठी से निकलकर 100-200 गज दूर अपनी एक सहेली के घर जाना था और वहां पहुंचते ही मैं पिताजी को खैरियत से आगाह कर देती। अब लाजमन पिताजी मेरी सहेली से मेरी आमद की बाबत दरियाफ्त कर चुके होंगे और जवाब नफ़ी में पाकर मुतफक्किर होंगे। मेरा ख्याल है कि तेरे अब्बू काफ़ी अमीर हैं। मेरा भी यही ख्याल है। वो हल्के से मुस्कुराई। तो फिर वो तेरे साथ बॉडीगार्ड क्यों नहीं रखते? बॉडीगार्ड मेरे साथ एक छोड़ दो होते हैं। आज बस मेरी बदकिस्मती कि मैं इन्हें साथ ना ले सकी। एक बात पूछूं, माइंड तो नहीं करोगी? पूछो। आपके दुश्मन कौन हैं? दुश्मन मेरे नहीं, पिताजी के हैं। दुश्मनी की वजह? मैंने पूछा। कुछ कारोबारी रकाबत और कुछ मजदूर बिरादरी अपने मुतालबात पूरे न होने पर दुश्मनी पर कमर बस्ता है। मजदूर बिरादरी? हाँ, पिताजी 2 फैक्ट्रियों के मालिक हैं। इन फैक्ट्रियों में आए दिन झगड़े और हड़तालें चलती रहती हैं। वही मालिक और मजदूर की अजली चपकलेश। लेकिन मालिक और मजदूर की चपकलेश में मालिक की औलाद को क्या खतरा दरपेश हो सकता है? इसके पस मंज़र में भी एक कहानी है। क्या? उसने वजाहत करते हुए कहा। पिताजी की इंतजामिया के हाथों 2-3 मजदूरों का कत्ल हो गया था। इनका खून बहा अदा करने से
पिता जी इनकारी हो गए कि ये शरपसंद है, इनके साथ यही होना चाहिए था। बस ये छोटी सी गलती बहुत बड़ी दुश्मनी का पेशखेमत साबित हुई। इसे आप छोटी सी गलती कहती हैं? मैं तंजिया लहजे में बोला। भाई लड़ाई झगड़े में तो ये होता ही है ना। जब दंगा फसाद होगा तो हलाकतें भी होंगी। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। किसी की करनी का फल फैक्ट्री का मालिक क्यों भुगते? हम इस वक्त एक मारूफ होटल के सामने से गुजर रहे थे, जिसके बाहर रंग बिरंगी रोशनियों से लिखा हुआ उसका नाम जगमगा रहा था, लेकिन वो हिंदी जबान में लिखा हुआ था, इसलिए मैं पढ़ न सका। जैसे ही हमारी गाड़ी गेट के सामने से गुजरी, एक खुली छत वाली जीप हमारे साथ से होकर गुजरी। शीतल, इस लड़की का नाम शीतल था, जो मुझे बाद में मालूम हुआ। इस वक्त मेरी तरफ मुतवज्जा थी, लेकिन मेरी नज़र इत्तेफाकन कार के ड्राइवर पर पड़ी, जो हमारी गाड़ी को देखकर वाज़ेह तौर पर चौंका था और फिर जीप रोककर अपने साथी को कुछ कहने लगा। मेरा हाथ बेख्तियार अपनी जेब में टिंक गया। इसका मतलब है कि इसने मुझे पहचान लिया है। मेरे दिमाग में फौरन खतरे की घंटी बजी, लेकिन फिर मुझे खुद ही अपनी सोच पर हंसी आ गई कि कार के अंदर छाए अंधेरे में वो मुझे किस तरह पहचान सकता था, जबकि अपने चेहरे पर मैंने मफलर भी लपेटा हुआ था। अगरचे मजदूरों की गलती थी, तब भी तुम्हारे डैडी को कुछ न कुछ रकम अदा करनी चाहिए थी। इससे इनकी दौलत में भी कोई खास कमी न होती और इसके साथ साथ ये दुश्मनी भी पैदा न होती। दुश्मनी के और भी कई असबाब हैं। इसी तरह तमाम असबाब पिताजी ख़त्म करते रहे तो अपनी दोनों फैक्ट्रियों से हाथ धो बैठेंगे। माशाअल्लाह, बहुत सिका पड़ा रखा है पिताजी ने आपको। मैं आपको कभी भी मुतमईन नहीं कर सकूंगी, वो बहस ख़त्म करते हुए बोली। बहरहाल आपको कहाँ ड्रॉप करूं? इससे कि पहले मैं इसको कोई जवाब देता, एक गाड़ी हमें तेज़ी से ओवरटेक करती हुई आगे निकली और हमारी गाड़ी के सामने इस तरह खड़ी हो गई कि हमारी कार का आगे जाना नामुमकिन हो गया। ये वही जीप थी जो चंद लम्हे पहले मैंने होटल के सामने खड़ी देखी थी। ये कौन कमीने हैं? शीतल झुल्लाते हुए बोली, लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले ही जीप के पीछे बैठे हुए 3 अफराद भागते हुए हमारी तरफ आए। तीनों के हाथ में हथियार थे। एक ने मुझ पर हथियार तान लिया और दूसरे ने शीतल पर, जबकि तीसरा पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। क्या बात है? शीतल ने गाड़ी की अंदरूनी लाइट जलाकर हकलाते हुए पूछा, लेकिन वो तीनों खामोशी से हमें घूरते रहे। इसी वक्त जीप का ड्राइवर ड्रामाई अंदाज में जीप से उतरकर हमारी सिमत बढ़ा। वो जैसे ही हमारी कार की हेडलाइट के सामने से गुजरा, बेसाख्ता शीतल के होंठों से निकला, ओह, तो ये कमीना है। ये हरकत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी मिस्टर अनिल, वो जहरखंद लहजे में बोली। तुम गालिबन इस हिजड़े नुमा बॉडीगार्ड पर इन्हिसार किए बैठी हो, वो मेरी तरफ इशारा करके इस्तेज़ाई लहजे में बोला। अगर तेरा बॉडीगार्ड रघु दादा की तरह होता तो तुम्हें बेशक इस तरह कहने का अधिकार था। ये तो खुद अभी रो रो कर अपनी जान बख्शी की विनती करेगा। अगर अपने आप पर तुझे इतना ही विश्वास है तो आ जाओ, मैं और आज़ाद होकर तुम्हें खाली हाथ लड़ाई की दावत देती हूँ। ज़रूर, लेकिन अपने ठिकाने पर जाकर, अनिल ने कहा, और इसके साथ ही इसने अपनी जेब से एयर फ्रेशनर नुमा बोतल निकाली और अपना हाथ खिड़की के करीब करके एक जोरदार बौछार स्प्रे कर दी। मेरी छठी इसने खतरे का अलार्म सा बजाया और मैंने बेसाख्ता सांस रोक ली, लेकिन वो सांस रोकना मेरे काम ना आ सका और मेरी आंखें बंद हो गईं। मुझे होश आया तो मैंने खुद को ज़मीन पर लेटे हुए पाया। दाएं बाएं देखने पर शीतल भी ज़मीन पर बिखरी पड़ी नजर आई। बेहोशी की हालत में इसका लिबास बेतरतीब सा हो रहा था। मेरे कोट की जेब में मौजूद दोनों पिस्टल गायब थे। नीलम से हासिल किया हुआ छोटा सा पिस्तौल जो मैंने अपनी कलाई के साथ बांधा हुआ था, वो भी उन्होंने खोल लिया था। पैसों और घड़ी को भी उन्होंने माफ़ नहीं किया था। वो यकीनी तौर पर शीतल के दुश्मन थे। अनिल नामी शख्स को देखकर शीतल ने जिस नफरत का इजहार किया था, इसे जाहिर होता था कि वह इससे अच्छी तरह वाकिफ थी। एक दफ़ा तो मेरे जी में आया कि शीतल को उसके हाल पर छोड़कर अपना उल्लू सीधा करूं और अनिल पार्टी से ताल्लुकात बनाकर दिल्ली से निकलने की कोशिश करूं, मगर बाद में मुझे अपनी सोच पर नदामत सी महसूस हुई। शीतल मेरी वजह से इन हालात से दो चार हुई थी। इसको इन गुंडों के रहमो करम पर छोड़ना उसके साथ जुल्म करने के मुतरादिफ था। मैंने सर झटक कर इन घटिया ख्यालात से अपना पीछा छुड़ाया। इसी वक्त शीतल के मुंह से एक करा बुलंद हुई
اور اس نے ہلکے سے کسمسا کر آنکھیں کھول دیں۔ چند لمحے وہ اسی طرح لیٹی چھت کو تکتی رہی اور پھر دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر اٹھ بیٹھی۔ میں بھی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر سر پکڑے رہنے کے بعد اس نے اپنا چہرہ میری جانب پھیرا اور آہستہ سے بولی، آپ غالباً، بالکل آپ نے صحیح پہچانا۔ میں نے قطع کلامی کی، میں وہی ہوں جس کے کارن آپ اس حالت کو پہنچی ہیں۔ اس میں آپ کا کوئی دوش نہیں ہے، میری اپنی قسمت ہی ایسی تھی، وہ فلسفیانہ لہجے میں بولی۔ اچھا چھوڑیں اس سلسلے کو، اپنا تعارف تو کروائیں۔ میرے نام کا پتہ تو آپ کو چل ہی گیا ہوگا۔ پتا جی کا نام سیٹھ ہری چرن داس ہے اور میں اس کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرا نام اسلم ہے، میں سے نظریں چراتے ہوئے بولا، اور کہانی وہی ہے جو کسی بھی حالات کے مارے عام شخص کی ہو سکتی ہے۔ اداکاری اچھی کر لیتے ہو عمر جان، وہ جان کی جا کو کھینچتے ہوئے شوخ لہجے میں بولی۔ میں کسیانہ ہو کر بولا، سوری، لیکن یہ میری مجبوری ہے، ہر شخص کے سامنے میں اپنی اصلیت ظاہر نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب میں بھی عوام کی لسٹ میں آ گئی ہوں؟ تو آپ خواص کی لسٹ میں کب تھیں؟ میرے منہ سے غیر ارادتاً نکلا۔ بعد میں مجھے اپنے فکرے کی تلخی کا احساس ہو گیا، لیکن کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ واپس نہیں آ سکتے۔ اوہ، آئی ایم سوری، وہ نادم ہو کر بولی، مجھے اتنا فری نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے تو مائنڈ کر لیا۔ میں جلدی سے بولا، میں تو صرف مزاق کر رہا تھا۔ آپ کا اور میرا مذاق کب سے ہو گیا؟ اس نے جوابی چوٹ کی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ اس کا موڈ بحال ہونے میں کافی دیر لگے گی، اس لیے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے میں نے خاموشی اختیار کر لی اور اس صورتحال سے نمٹنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ انڈیا کی زمین نے میرے لیے دلدل کی صورت اختیار کر لی تھی۔ اس سے نکلنے کے لیے میں جتنے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اتنا دھنستا جا رہا تھا۔ آپ تو بالکل چپ ہو گئی ہیں۔ وہ زیادہ دیر خاموشی برداشت نہ کر سکی اور بول پڑی، لیکن میں اسے جواب دینے کی بجائے آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ مسٹر جان سو گئے کیا؟ وہ پوچھنے لگی۔ میرا نام عمر جان ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ میں نے میری جان نہیں، صرف جان کہا ہے، مطلب ایک ہی بنتا ہے۔ میں بھی ترکی بترکی بولا۔ غلط فہمی ہے جناب کی، وہ شوخی سے بولی۔ اچھا چھوڑو اس چوٹ بازی کو، میں نے موضوع بدلا۔ اس انیل کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ آپ کے انداز سے تو یوں لگ رہا ہے جیسے وہ آپ سے اچھی طرح واقف ہیں۔ کمینہ، وہ نفرت بھرے لہجے میں بولی۔ یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتا رہا ہے، مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ موصوف کو مجھ سے محبت کا دعویٰ تھا، بلکہ ہے، اور اس سلسلے میں ایک دن پتا جی کے پاس میرا رشتہ مانگنے چلا گیا۔ پتا جی نے اسی وقت مجھے بلا کر پوچھ لیا کہ موصوف اس وجہ سے تشریف لائے ہیں اور تیری کیا رائے ہے؟ ان کا خیال تھا کہ شاید اس کے آنے میں میری مرضی شامل ہے، لیکن میں نے پتا جی کے سامنے اسے خوب بے عزت کیا۔ نتیجے میں پتا جی نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکلوا دیا۔ اس بات کو 2 ہفتے ہونے کو ہیں۔ اسی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس نے کسی کنڈے کو ہائر کیا ہے جسے پتہ نہیں کون سا دادا کہہ رہا تھا۔ باقی کے واقعات تمہاری نظروں کے سامنے ہیں۔ میں نے ایک لمبی سانس کھینچی۔ اب آپ بھی اپنے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے؟ وہ بولی۔ اخبارات میں تو آپ کے متعلق کافی کچھ لکھا جا چکا ہے، لیکن اس میں حقیقت کتنی ہے، اس کی وضاحت کر دیں۔ اخبارات میں کتنی حقیقت ہوتی ہے اس سے آپ واقف ہیں، اسی لیے تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ جواباً میں نے اسے مختصراً اپنی کہانی سنا دی، لیکن بہت سی باتیں اس میں حذف کر گیا۔ وہ بڑے اشتیاق سے میری کہانی سنتی رہی۔ میں بمشکل اپنی بات ختم کر پایا تھا کہ بند دروازے کے پیچھے قدموں کی چاپ ابھری، تالے میں چابی گھومنے اور پھر ہلکی سی کٹک کے ساتھ تالا کھلنے کی آواز آئی۔ دروازہ کھلا، ایک شخص ہاتھ میں ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوا، جبکہ اس کی پشت پر مجھے 2 ہتھیار بردار نظر آئے جنہوں نے ہاتھوں میں ہلکی مشین گنیں پکڑی ہوئی تھیں۔ کمرے میں داخل ہونے والے شخص نے ٹرے ہمارے سامنے رکھی اور پھر کچھ بولے بغیر واپس مڑ گیا۔ دروازے پر موجود دونوں سنتریوں نے بھی کچھ بولنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ کھانا لانے والے کے کمرے سے نکلتے ہی انہوں نے دروازہ بند کیا اور دروازے سے ہٹتے چلے گئے۔ کھانا سبزی کے سالن اور تندور کی روٹیوں پر مشتمل تھا۔
اس کا مطلب ہے کہ دن کافی گزر گیا ہے کہ یہ ناشتے کی بجائے کھانا دے گئے ہیں۔ میں نے ٹرے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ شاید، وہ آہستہ سے بولی۔ چلو کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے ٹرے اس کی سمت کھسکائی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ آپ کھائیں، میں نے اصرار کیا۔ تھوڑا سا تو کھا لیں۔ میرے کہنے پر اس نے ایک نوالا لیا اور پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس وقت اچھی خاصی بھوک لگ رہی تھی، اس لیے میں 3-4 روٹیاں کھا گیا۔ آپ کو اس صورتحال میں بھی بھوک لگتی ہے؟ وہ حیرانی سے بولی۔ ہم کمانڈوز کے لیے ماحول کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ مثلاً مجھے یہاں سے بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے تو راستے میں بھوکے پیٹ میری کارکردگی آدھی رہ جائے گی نا؟ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم مردوں کو صرف ایک خطرہ ہوتا ہے، یعنی جان کا خطرہ، جبکہ عورت ذات کو اس کے ساتھ ساتھ عزت لٹنے کا بھی خوف ہوتا ہے، جو اس کے لیے موت سے بھی بھیانک سزا بن جاتی ہے۔ میں اس جیسی آزاد خیال لڑکی کے اس قدر قدامت پرست خیالات سن کر حیران رہ گیا۔ دروازے کے باہر ایک مرتبہ پھر قدموں کی آواز آئی اور باورچی نما شخص دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے ہاتھ میں ایک کرسی پکڑی ہوئی تھی جو اس نے کمرے کے فرش پر رکھ دی اور کھانے کے برتن سمیٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے ساتھ آنے والے دونوں گن مین دروازے کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے تھے۔ دونوں نے گنوں کو مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور ہماری ہلکی سی جنبش پر فائر کرنے کے لیے تیار تھے۔ چند لمحوں بعد انیل آنکھوں پر سیاہ چشمہ چڑھائے کمرے میں داخل ہوا اور بڑے انداز سے کرسی پر برائے جمان ہو گیا۔ ہاں تو شیتل بی بی، کیا حال ہے؟ وہ مجھے یکسر نظر انداز کرتے ہوئے بولا، لیکن شیتل نے جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ ویسے مجھے آپ کو اس حالت میں دیکھ کر بڑا افسوس ہوا ہے۔ شیتل کو خاموش پا کر وہ دوبارہ بولا، ایک سیٹھ زادی اور اس لاچاری کی حالت میں زمین پر لیٹی ہوئی ہے۔ حوالات میں بھی چرپائی نہیں ملتی جو تیری آخری منزل ہے، شیتل غصے سے بولی۔ ہاں ہاں ہاں، اس کا استہزائی کہا گونجا۔ اس کو کہتے ہیں کہ رسی جل گئی پر بل نہیں نکلا۔ اس سے پہلے کہ اس کے جواب میں شیتل کچھ بولتی، کسی گاڑی کا تیز ہارن سنائی دیا۔ میرا خیال ہے کہ رگھو دادا واپس آ گیا ہے، انیل ہتھیار برداروں سے مخاطب ہوا۔ دونوں میں سے ایک گیٹ کھولنے کے لیے چلے جاؤ، اور ایک سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک دیو کاما شخص تیزی سے چلتا ہوا اس کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ کھولنے کے لیے جانے والا ایک اور دوسرا شخص اس کے ہمراہ تھا۔ وہ رگھو دادا تھا۔ اس کے چہرے پر زخموں کے 3-4 نشانات نظر آ رہے تھے۔ نہایت کرہیہ شکل اور بھیانک چہرہ تھا۔ عام لوگ تو اس کو دیکھ کر ہی کانپ جاتے ہوں گے۔ وہ قد اور جسامت ہر 2 لحاظ سے مجھ پر بھاری نظر آ رہا تھا۔ بابو، وہ چڑی مار سیٹھ تاوان دینے پر آمادہ نہیں ہو رہا، وہ انیل سے مخاطب ہوا جو اس کو دیکھ کر بے ساختہ کھڑا ہو گیا تھا۔ رگھو دادا، آپ فکر نہ کریں، انیل اعتماد سے بولا، میں اسے راضی کر لوں گا، بس تھوڑی دیر لگے گی۔ نہیں بابو، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میرا طریقہ کار کچھ اور ہے۔ اس نے انیل کے چہرے سے نظر ہٹا کر ایک سرسری نگاہ مجھ پر ڈالتے ہوئے کہا اور پھر شیتل کی طرف دیکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ شیتل کی طرف دیکھتے ہی اس کی سانپ کی مانند چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں ایک چمک سی لہرائی تھی جو واضح طور پر خباثت کی چمک تھی۔ ایک عورت ہونے کے ناطے شیتل ان احساسات سے زیادہ واقف تھی۔ وہ بے ساختہ اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ رگھو دادا، آپ مجھے 1 ہفتے کی مہلت تو دیں، انیل آہستہ سے بولا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ رگھو دادا سے دب کر بات کر رہا تھا۔ میں سیٹھ سے منوا لوں گا۔ تم چھوڑو اس بات کو، رگھو دادا شیطانی انداز میں شیتل کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ میں اس کے باپ کو ایسا تحفہ بھیجوں گا کہ اس کو رگھو دادا کے ساتھ پنگا لینے کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے سمٹی سمٹائی شیتل کا بازو پکڑا۔ شیتل نے زور لگا کر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن یہ چیونٹی اور ہاتھی کا مقابلہ تھا۔ چھوڑو مجھے کمینے کتے، وہ چلائی۔ جواباً رگھو دادا کہا لگا کر ہنسا اور اسے کھینچتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ رگھو دادا کو روکنے کے لیے میں نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر دروازے کے اطراف میں کھڑے ہتھیار برداروں میں سے ایک تھاڑا، خبردار اگر اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کی، اور میں ہونٹ کاٹتا ہوا بیٹھا رہ گیا۔
जान मझे इस वेश्या से बचाओ। शीतल जब अपना हाथ उसके पंजे से ना छुड़ा पाई तो मुझे पुकार कर बोली, जबकि अनिल जो रघु दादा के इस इकदाम पर हक्का बक्का खड़ा था। नहीं रघु दादा नहीं, ये कहते हुए उसके पीछे दौड़ा। रघु दादा जो शीतल को अपने बाएं हाथ से पकड़े दरवाजे से निकलने वाला था, अचानक घूमा और अपने सीधे हाथ का जोरदार थप्पड़ अनिल के चेहरे पर मारा और वो उड़ता हुआ मेरे कदमों में आ गिरा और फिर इधर ही पड़ा रहा। इसको हवेली से बाहर फेंक दो। रघु दादा को उठाया और फिर चीखती चिल्लाती शीतल को घसीटता हुआ बाहर ले गया। जी दादा, ये कहकर इनमें से एक आगे बढ़ा और अनिल को गिरेबान से पकड़कर दरवाजे की तरफ घसीटने लगा, जबकि दूसरा मुझ पर हथियार ताने खड़ा रहा। इसके कमरे से निकलते ही बाकी दोनों भी कमरे से निकले और दरवाजा बंद करके दूर होते गए। मेरा ज़हन इस वक्त शीतल की चीखों की तरफ मुतवज्जा था, जो बड़े जोर से चिल्ला रही थी और भगवान के वास्ते देकर अपनी जान बख्शी की मिन्नत कर रही थी। मेरा खून खौल उठा, मुझसे बैठा न गया। मैं मुट्ठियां भींचकर खड़ा हो गया और इज़्तिराब की हालत में टहलने लगा। क्या मेरी मौजूदगी में एक बेबस लड़की को बेइज्जत कर दिया जाएगा? मेरे जहन में सोच उभरी। नहीं, कभी नहीं, मैं जोर से बोला। इसे इस हालत में पहुंचाने का जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे कुछ करना होगा। मैं दरवाजे की सिमत बढ़ा। टाइम बहुत कम था। रघु दादा पर शैतान सवार था। एक बात मेरे हक में जाती थी कि उसने अपने बाकी बंदों को हुक्म दिया था कि अनिल को इस हवेली से बाहर फेंक आए और इस मोहलत से फायदा न उठाना कुफराने नेमत था। मैंने दरवाजे को हाथ लगाकर देखा। दरवाजा मजबूत लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन इसके बाहर लगी हुई जंजीर मुझे कोई खास मजबूत नजर न आई। सबसे अच्छी बात यह थी कि दरवाजा आम उसूल के बरखिलाफ बाहर की तरफ खुल रहा था। मैं दरवाजे से चंद कदम पीछे हटा और फिर दौड़कर अपने बाएं कंधे की ज़रब दरवाजे के दरमियान में लगाई। पहली ज़रब कामयाब रही और मैं दरवाजे की कुंडी तोड़ता हुआ बाहर जा गिरा। शीतल की चीखें दाएं तरफ 2 कमरे छोड़कर तीसरे कमरे से आ रही थीं। मैं ज़मीन से उठकर इस सिमत दौड़ता चला गया। आसपास के मनाजिर से मैं बेनियाज हो गया था। इस कमरे तक का फासला मैंने दौड़कर तय किया। मेरी यह शीतल की खुशकिस्मती के जज्बात में अंधे होकर रघु दादा कमरे का दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। इस कमरे के दरवाजे को भी मैंने बाहर की तरफ खुलता पाया। इसका मतलब था कि इस इमारत के सारे दरवाजे इसी तरह बाहर की तरफ खुलते थे। मैं आंधी तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुआ। इस देवकामत करिया शक्ल रघु दादा के बदन पर सिर्फ एक जांघिया नजर आ रहा था, जबकि शीतल बेलिबास एक कोने में खड़ी कांप रही थी और रघु दादा शीतल के चीखने चिल्लाने और मिन्नतों से बेपरवाह होकर उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। इस मंजर को देखकर मेरे जहन में बेसाख्ता इस बिल्ले का ख्याल आया जिसने नन्ही सी चुईया को कोने में इस तरह घेर लिया हो कि उसके भागने का कोई रास्ता ना बचा हो। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, शीतल चिल्लाई, जान जान, अपने खुदा के वास्ते मुझे इससे बचाओ। मैं शायद बेखबरी में रघु दादा पर वार करने की कोशिश करता, गो ये मेरी मर्दानगी के खिलाफ होता, लेकिन एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए मुझे इस किस्म का ताना गंवारा था। क्योंकि अनिल को बाहर फेंकने वालों ने वापस आ जाना था और तमाम पर अकेले काबू पाना मेरे लिए नामुमकिन हो जाता। लेकिन शीतल ने मेरा ये मंसूबा नाकाम कर दिया और उसकी तरफ मस्ती से झूमकर बढ़ता रघु फुर्ती से पीछे घूमा। मुझे देखकर उसका करीहा चेहरा भयानक अंदाज में बिगड़ गया। इसको पीछे मुड़ता देखकर मैं अपनी जगह पर रुक गया और फिर उल्टे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मेरे इस तरह पीछे हटने को उसने मेरे भागने पर महमूल किया और इस्तेज़ाई अंदाज में हंसा। शीतल भी यही समझी कि मैं वहां से डर कर भाग रहा हूँ। वो चिल्लाई, नहीं जान नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ। इसको जवाब देने की बजाय मैं दरवाजे के करीब पहुंचा और दरवाजे के अंदर से कुंडी लगा दी। ऐसा मैंने अपने अकब को महफूज रखने के लिए किया था। कुंडी बंद करके मैं पलटा। मेरे सामने एक सख्त हरीफ खड़ा कीनतोस नजरों से मेरी जानिब घूर रहा था। मैं खाली हाथ था और एक मर्तबा फिर मुझे जिंदगी और मौत का मार्का दरपेश था। रघु दादा को जिंदगी की कैद से आज़ाद करके ही मैं शीतल की इज्जत बचा सकता था। बालक, तुमने अपने लिए बहुत बुरी मौत का चुनाव किया है, रघु दादा भयानक आवाज में गरजा। रघु दादा,
कमज़ोर निहत्ती औरतों को अपनी मर्दानगी के जौहर दिखाना बहुत आसान होता है, मैं तंज़िया लहजे में बोला। लेकिन जिस वक्त सामने मर्द आए तब तेरे जैसे हिजड़ों को पता लगता है कि मर्दानगी क्या है। इस वक्त दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी और साथ ही किसी ने जोर जोर से पुकारा, रघु दादा, रघु दादा कहती भाग गया है। दफा हो जाओ कुत्तो। मेरी बातें सुनकर रघु का पारा यूं भी आसमान को छू रहा था और वो गुस्सा उसने उन्हीं पर निकाल दिया। तुम्हारा बाप भागा नहीं, इधर ही है। रघु को अपने गुर्गों के साथ मसरूफ गुफ्तगू देखकर मैंने अपनी जैकेट और कमीज उतार कर चरपाई पर डाल दी थी, क्योंकि इस देव के साथ लड़ाई के दौरान मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ी की ज़रूरत पड़ती, जिसमें जैकेट और कमीज लाजमन रुकावट बनती। दादा, फिर हम क्या करें? बाहर से सहमी हुई आवाज़ आई। बताया तो है, दफा हो जाओ। इसकी हड्डियां तोड़ने के लिए रघु दादा को किसी कुत्ते की मदद नहीं चाहिए। जी दादा, ये कहकर वो दरवाजे से हटते चले गए। इस बात का अंदाजा मुझे इनके दूर जाते कदमों की चाप से हुआ। मैंने नजरें तिरछी करके शीतल की तरफ देखा। वो अभी तक इसी हालत में खड़ी थी। मैंने हाथ बढ़ाकर चरपाई पर पड़ी अपनी जैकेट उठाई और उसकी तरफ उछाल कर बोला, ये पहन लो। गो कि वो जैकेट इसके जिस्म पर बहुत खुली थी, लेकिन बरहनगी छुपाने के लिए गनीमत थी। शीतल ने झपट कर जैकेट को पकड़ लिया। वाह भाई वाह, रघु अपनी मनहूस आवाज में गरजा। बड़ी तकलीफ हो रही थी तुझे, लेकिन कब तक छुपाओगे इसे? रघु, भौंक अच्छा लेते हो। शीतल की तरफ से बेफिक्र होकर मैंने इसे छेड़ा। मैं चाहता था कि इसे इतना गुस्से में कर दूं कि वो अपनी दिफा से गाफिल हो जाए और मैं अपने मकसद में कामयाब रहा। रघु गुस्से में धाड़ता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। मैं अपनी जगह पर तैयार खड़ा था। मेरे करीब पहुंचकर उसने पूरी कुव्वत से अपना दायां बाजू घुमाया। मैंने झुकाई देकर उसका वार खता किया। वो अपनी झोंप में घूम गया था। पुष्ट पर लगने वाली मेरे पाँव की ठोकर से वो बेसाख्ता चंद कदम दौड़ता चला गया। इसके मुड़ने से पहले मैं अपने दाएं पाँव पर घूम चुका था। मेरी बाएं पाँव की एड़ी उसकी छाती से टकराई और वो कूलों के बल जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसने उठने में देर न लगाई और उठकर अपने दाएं पाँव की ठोकर पूरी कुव्वत से मेरी छाती पर दे मारी। मैंने दोनों हाथों का क्रॉस बनाकर इसकी जब्त से बचने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में मेरे पाँव इनबैलेंस हो गए और मैं पीछे गिर पड़ा। रघु ने मुझे ठोकरों पर रख लिया। इसके पाँव में जूते नहीं थे, लेकिन इसकी हर ठोकर मुझे हथौड़े की तरह लग रही थी। वो गुस्से की शिद्दत में फुनकार रहा था और उसके मुंह से किसी गंदे गटर की गंदगी की तरह वाहियात गालियां निकल रही थीं। तीसरी चौथी ठोकर पर उसका पाँव मेरे हाथ में आ गया, जिसे खींचकर मैंने इसे जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया। मैं उछलकर खड़ा हुआ और अपने पाँव की एड़ी पूरी कुव्वत से जमीन से उठते रघु के माथे पर दे मारी। उसका सर एक धमाके से जमीन से टकराया। ये इसकी खुशकिस्मती थी कि फर्श पुख्ता नहीं था, वरना इसका काम हो गया होता। जमीन कच्ची होने के बावजूद इसके मुंह से करा खारिज हुई और इसके साथ ही इसके मुंह से गंदी गालियों की बौछार निकली। खड़े हो जाओ ज़नख़े, मैं इसे गुस्सा दिलाते हुए बोला। औरतों की तरह कोसने देने से बात नहीं बनेगी। वह एक मर्तबा फिर भगता झकता खड़ा हुआ। मैंने अपनी टांग लहराकर उसकी छाती में मारने की कोशिश की, लेकिन मेरी टांग उसके हाथ में आ गई। उसने मेरे पाँव को अपने हाथों में दबोचकर मुझे हवा में घुमाना चाहा। अगर वो इस बात में कामयाब हो गया होता तो आसानी से घुमाकर मुझे किसी दीवार से टकरा देता, लेकिन मैंने वो पाँव उसके हाथ में रहने देते हुए उछलकर अपने दूसरे पाँव की ठोकर उसके करीहा चेहरे पर दे मारी। मेरा पाँव उसके हाथ से छूट गया और मैं मुंह के बल जमीन पर गिरने लगा, लेकिन मैं इस बात के लिए तैयार था, इसलिए दोनों हाथ जमीन पर टेक कर मैं अपने चेहरे को जमीन पर रगड़ने से बचा गया। रघु दादा मेरी तरफ बढ़ने की बजाय अपने कपड़ों की तरफ दौड़ा। मुझे पता चल गया कि वो कोई हथियार लेने के चक्कर में है। मैं भी उठकर उसके पीछे दौड़ा। वो इस वक्त झुककर अपने कपड़ों से कुछ निकालने की कोशिश में मसरूफ था। अगर मैं इसी तरह दौड़कर उसकी तरफ बढ़ता तो वो लाजमन हथियार निकालने में कामयाब हो जाता। मैं अपनी जगह से उछला और हवा में तैरता हुआ उस पर जा पड़ा। अपनी कमर पर लगने वाली मेरे सर की चोट से वो मुंह के बल गिर पड़ा और उसके साथ ही मैंने इस पर ठोकरों की बारिश कर दी। इसे ठोकरें लगाते हुए मुझे अजीब सी लज्जत महसूस हो रही थी और ऐसा शायद
शीतल के साथ उसके नारवा सलूक की वजह से था। उसने मेरा पाँव पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी फुर्ती की वजह से उसे कामयाबी हासिल न हो सकी। वो लुढ़कनियाँ खाता हुआ मेरे पाँव की पहुँच से दूर हटा और फिर उछलकर खड़ा हो गया। पसीना धारों की सूरत में हम दोनों के जिस्मों से बह रहा था। रघु किसी थके हुए कुत्ते की मानिंद हाँफ रहा था। इसकी पहली अकड़फू और दमखम रुखसत हो चुका था। अब इसे कोई राह फरार नजर नहीं आ रही थी। रघु, मैंने इसे इस्तेज़ाई अंदाज में पुकारा। मैंने कहा था ना कि लड़ाई भिड़ाई मर्दों का काम है। अभी अगर तुम चूड़ियां पहनकर एक ठुमका लगाकर दिखा दो तो मैं तुम्हें जिंदगी की भीख दे सकता हूँ। मेरी बात सुनते ही रघु एक मर्तबा फिर गुस्से से बकता झकता मेरी जानिब बढ़ा। गुस्से की शिद्दत में वो अपने दिफा से बिल्कुल गाफिल हो गया था, जो कि मेरा मुतमईन नजर था। जैसे ही वो मेरे करीब पहुंचा, मैंने अपना सीधा पाँव उसकी बाएं साइड की पसलियों के नीचे मारा। वो औक की आवाज़ के साथ रुकू के बल झुक गया। मुझे भी उसकी यही पोजीशन दरकार थी। अगले ही लम्हे उसकी मोटी गर्दन मेरे बाएं बाजू की गिरफ्त में थी। रघु, तुझे कहा था ना, चूड़ियां पहनकर अपनी जान बख्शी करवा ले। मैं इसकी गर्दन पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए बोला, मगर तू ये न माना। अब अपने गुरु शैतान को याद कर ले कि ये तेरा आखिरी वक्त है। रघु ने तड़प कर अपनी गर्दन मेरी गिरफ्त से आज़ाद कराने की कोशिश की, मगर इसकी कोशिश इतनी ही नाकाम गई जितनी बिल्ली के मुंह में फंसे किसी चूहे की जान बचाने की कोशिश नाकाम जाती है। मैंने अपने बाएं बाजू को मखसूस अंदाज में झटका दिया और कटाक की आवाज़ के साथ रघु का जिस्म मेरे हाथों में झूल गया। मैंने इसे नफरत से जमीन पर फेंक दिया। कोने में सिमटी शीतल भागकर मेरे करीब आई और वारिफ्तगी के साथ मुझसे लिपट गई। तुम ठीक तो हो ना? वो मेरे सर पर हाथ फेंकते हुए चाहत से बोली। हाँ, मैं गहरी सांस लेते हुए बोला। इसका इस तरह लिपटना मेरे से मुनासिब नहीं था, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को अलहदा किया। सर्दी के बावजूद इतना पसीना? वो अपने हाथों से मेरे चेहरे का पसीना पोंछने लगी। मैं खाना नहीं खा रहा था, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, मेरी खातिर ना। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजी और शीतल के अपनी तरफ बढ़ते कदमों को रोकने के लिए मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, तेरी जगह पर कोई भी औरत होती मैंने यही करना था। हाँ, आप हैं ही इतने अच्छे, इतने प्यारे। अच्छा, छोड़ो इन बातों को। अभी तक इसके गुर्गे सही हालत में बाहर मौजूद हैं। आपकी मौजूदगी में मुझे अब किसी का खौफ नहीं है। मैं कब तक तेरे पास रहूँगा? मैंने एक तल्ख हकीकत बयान की, जिसका जवाब उसके पास मौजूद नहीं था। वो आहिस्तगी से उठी और चारपाई पर जाकर बैठ गई। मैंने एक लम्हा उसकी तरफ देखा और फिर नज़रें हटाकर ज़मीन पर बिखरे रघु के लिबास की तरफ मुतवज्जा हो गया। उसकी तलाशी लेने पर कोबरे का ब्रीटा और नीलम का छोटा पिस्टल दोनों उसकी जेब में पड़े मिल गए। एक तेज़ और लंबी चौड़ी धार का खंजर भी चमड़े के कवर में बंद मुझे नजर आ गया। नीलम का पिस्टल मैंने पतलून की जेब में डाला, जबकि खंजर का कवर अपनी जुर्राब के नीचे पिंडली के साथ एक तस्मे से बांध दिया। शीतल इस दौरान खामोशी से चारपाई पर बैठी मेरी हरकत को देखती रही। ब्रीटा हाथ में लेकर मैं दरवाजे की सिमत बढ़ा और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। वो एक सादा सी इमारत थी। तमाम कमरे एक कतार में बने हुए थे। सूरज को देखकर अंदाजा हुआ कि हर कमरे का दरवाज़ा मशरक की सिमत में था। इमारत की शुमाली और जुनूबी दीवार के साथ भी एक एक कमरे का दरवाज़ा नजर आ रहा था, जिनका रुख एक दूसरे की जानिब था। तमाम कमरों के सामने एक खुला और वसी बरामदा था और इसके बाद एक लंबा चौड़ा वसी सहन था। कमरों के दरवाजे बाहर की जानिब खुलते थे, इसलिए मैंने एहतियात से बाहर झांका कि दूर से ही दरवाज़ा खुलता नजर आ जाता, लेकिन खुशकिस्मती से मुझे बरामदा और सहन खाली नजर आए। बाएं हाथ के एक कमरे से मुझे हल्की हल्की गाने की आवाज़ आ रही थी। शायद कोई रेडियो या टेप रिकॉर्डर पर गाने सुन रहा था। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर शीतल को अपनी जानिब आने का इशारा किया। वो तो जैसे मेरे इशारे की मुंतज़िर थी, भागकर मेरे करीब आ गई। मैंने छोटा पिस्तौल उसके हवाले करके कहा, मैं बाएं सिमत को जा रहा हूँ, तुम कमरे के अंदर रहते हुए दाहिनी जानिब नज़र रखना, ये ना हो पुश्त की जानिब से कोई मुझे पार कर दे। भगवान न करे, वो जल्दी से बोली।
برے شब्द तो ना निकालो मुंह से। गोली तो चला लोगी ना? मैंने पूछा। ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। वो शरारत से मुस्कुराई और मैं सर हिलाता आवाज वाले कमरे की सिमत बढ़ता चला गया। वो रेडियो की आवाज थी, क्योंकि जिस वक्त मैं कमरे के नजदीक पहुंचा, इस वक्त कंपेयर सामाइन के खतूत पड़ रही थी। इसके साथ रघु के गुर्गों की बातचीत की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैं दबे कदमों दरवाजे के करीब पहुंचा। कमरे का दरवाजा नींव हुआ था। मेरे हाथ में मौजूद पिस्तौल फायरिंग पोजीशन में रेडी था। हैंड्स अप। मैं दरवाजे को मुकम्मल खोलकर कमरे में दाखिल होते हुए बोला। वो दोनों चारपाइयों के ऊपर लेटे मसरूफ गुफ्तगू थे। इनका तीसरा साथी इधर नजर नहीं आ रहा था। मेरी धाड़ सुनकर वो उछल पड़े, लेकिन हाथ उठाने की जरूरत उन्होंने महसूस न की और झपट कर अपनी क्लाशनकोफें उठानी चाहीं, लेकिन ये इनकी खाम ख्याली थी। बिरीटा पिस्तौल की नाल से निकलने वाली बेरहम गोलियां इनसे ज्यादा तेज साबित हुईं। दोनों की खोपड़ियों में सुर्ख रोशनदान खुल गए थे। मैंने पिस्टल अपने बेल्ट में उड़सा और झपटकर चरपाई के साथ खड़ी क्लाशनकोफ उठा ली। तीसरे बंदे का कोई पता नहीं था कि वो किधर छुपा हुआ था। मैं जैसे ही बाहर निकलने के लिए मुड़ा, मुझे हल्के हल्के 2 धमाके सुनाई दिए। ये नीलम के पिस्तौल की आवाज थी। मैं भागकर बाहर निकला। बरामदे में तीसरा आदमी पड़ा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मेरे सामने रघु, अनिल और इनके साथ यही 3 बंदे आए थे जो इस वक्त जहन्नम रसीद हो चुके थे। लेकिन ये बात बई-दस कयास नहीं थी कि इनके अलावा भी इस जगह इनका कोई और साथी पोशीदा हो। मुझे देखकर शीतल भी कमरे से निकल आई। इधर ही रहो। मैंने इसे वापस कमरे में जाने का इशारा किया और वो जल्दी से कमरे के अंदर हो गई। लाश के करीब पड़ी क्लाशनकोफ उठाकर मैं भी शीतल के पीछे कमरे में घुस गया। इधर कितने बंदों को खत्म कराए हो? 2 थे और तीसरा तेरे हाथों अपने अंजाम को पहुंच गया है। वो बावर्ची भी तो था ना, जो हमारे लिए खाना लेकर आया था? वो मुझे याद दिलाते हुए बोली। मैं इसकी बात सुनकर हकीकतन उछल पड़ा। तुम इसी कमरे में रहो और अंदर से कुंडी लगा लो। जब तक मेरी आवाज़ पहचान न लो, दरवाज़ा नहीं खोलना। ठीक है, वो अस्पात में सर हिलाते हुए बोली और मैं एहतियात से चलता हुआ बाहर निकल आया। शीतल ने मेरे बाहर आते ही अंदर से कुंडी चढ़ा दी थी। मैंने एक तरफ से कमरों की तलाशी लेना शुरू कर दी। मतलूबा शख्स मुझे बाएं जानिब के आखिरी कमरे में मिल गया, लेकिन इस हालत में कि कोई काम करने के काबिल नहीं था। वो किसी नामालूम नशे के ज़ेरे असर धुत पड़ा था। वो अफ्यूम, चर्च, भंग, शराब से लेकर कोकीन पाउडर तक किसी चीज़ का नशा भी हो सकता था। मैंने इसे हिलाया जुलाया, मगर इसमें कोई जुम्बिश पैदा न हुई। इसके कमरे की तलाशी लेने पर मुझे थोड़ी सी नकदी के अलावा कोई काम की चीज़ न मिली। वो गालिबन इनका बावर्ची था और दोपहर के खाने के बाद आराम फरमा रहा था। यूं भी नशई बंदा अपना नशा लिए बगैर सो नहीं सकता। इसकी चारपाई के नीचे झांकने पर घटिया शराब की 3-4 बोतलें पड़ी नजर आईं। इन बोतलों पर कोई लेबल वगैरह लगा हुआ नहीं था। इसका मतलब था कि वो मकामी तौर पर तैयार की गई शराब थी। वो बावर्ची मुख्तसर कामत का शख्स था। उसका लिबास शीतल को फिट आ सकता था। मैंने इसके सामान में से एक साफ सुथरी पैंट शर्ट उठाई, इसके कमरे को बाहर से कुंडी चढ़ाई ताकि होश में आने पर वो कोई गड़बड़ ना कर सके, और शीतल के कमरे की तरफ बढ़ गया। मेरी आवाज़ पहचानते ही उसने दरवाज़ा खोल दिया। वो बावर्ची अपने कमरे में नशे में धुत पड़ा है। मेरा अंदाज़ा है कि इसका लिबास तुझे फिट आएगा। लो, ये पहन लो। मैंने लिबास इसकी सिमत बढ़ाते हुए कहा, और मेरी जैकेट वापस करो। तेरी जैकेट तो मैं खाई जाऊंगी ना, वो मसनूई खफगी से बोली। मैं इससे कहकर कमरे से बाहर निकल आया। बाहर आकर मैं एक मरतबा फिर तमाम कमरों की तलाशी तफसील से लेने लगा। थोड़ी सी नकदी के अलावा मुझे कोई काम की चीज़ न मिली। सारे कमरों में घटिया शराब, फहश तस्वीर, चर्च, सिगरेट और इसी किस्म की दीगर अशिया वाफिर मिकदार में मौजूद थीं। मैं एक मरतबा फिर इस बावर्ची नुमा शख्स के कमरे में घुस गया। इसके चेहरे पर पानी फेंकने और थप्पड़ मारने पर भी मैं इसे होश में ना ला सका। मजबूरन मैं इसे इसके हाल पर छोड़कर बाहर निकल आया। कमरे की कुंडी लगाना मैं नहीं भूला था। शीतल कमरे के दरवाजे में खड़ी थी। बावर्ची का लिबास इसे बिल्कुल फिट आया था। मैं इसे बात किए बगैर कमरे में दाखिल हो गया। मेरी कमीज और जैकेट चरपाई पर पड़ी थी। जैकेट वगैरह पहनकर मैंने पतलून की जेबों में ठूसा हुआ सारा सामान जैकेट की जेबों में मुंतकिल किया
اور وہاں سے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ جگہ ہمارے لیے محفوظ نہیں تھی۔ ضروری نہیں تھا کہ رگو کے گرگوں کی تعداد 3-4 ہی ہو۔ حویلی کی ساخت سے تو لگتا تھا کہ اس میں کافی بندے رہائش پذیر تھے۔ حویلی کے صحن میں شیتل کی کار اور ایک جیپ کھڑی تھی۔ یہ وہی جیپ تھی جس میں کل رات انیل اور اس کے ساتھی سوار تھے۔ چلو، میں کلاشنکوف کی 2 فالتو میگزینیں جیب میں ڈال کر شیتل سے مخاطب ہوا۔ یہ جگہ ہمیں فی الفور چھوڑنی پڑے گی۔ یہ کہتا ہوا میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا صحن میں کھڑی گاڑیوں کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں گاڑیوں میں مجھے سفر کرنے کے لیے شیتل کی کار مناسب معلوم ہوئی۔ خنجر نکال کر میں نے جیپ کے دونوں اگلے ٹائر بیکار کر دیے تاکہ اس میں بیٹھ کر کوئی ہمارا تعاقب نہ کر سکے۔ گو اس کا امکان نہیں تھا، لیکن احتیاط کے طور پر میں نے ایسا کرنا ضروری سمجھا۔ حویلی کا داخلی دروازہ کھول کر میں نے باہر جھانکا۔ خلاف توقع باہر مجھے چھدرے چھدرے درخت نظر آئے جو دور تک بتدریج گھنے ہوتے چلے گئے تھے۔ عمارت کے نزدیک مجھے کوئی اور تعمیر نظر نہ آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم شہر سے کافی دور لائے گئے تھے۔ میں آہستہ سے بڑبڑایا اور واپس مڑ کر کار میں آ بیٹھا۔ وہ مجھ سے پہلے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے گاڑی اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ گیٹ سے باہر مجھے 2 راستے مخالف سمتوں میں جاتے دکھائی دیے۔ جس وقت رگو گروپ نے ہمیں اغوا کیا تھا، اس وقت ہم دہلی شہر کے جنوب مشرق کی سمت میں تھے، اور میرا گمان تھا کہ ابھی ہم دہلی کے مضافات میں شہر سے مشرق کی سمت میں موجود تھے۔ دہلی شہر کی طرف واپس جانا اوکھلی میں سر دینے کے مترادف تھا۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے گاڑی کا رخ جنوب کی سمت موڑ دیا۔